Suleiman louder, Mr. Suleiman, Mr. But Suleiman. this hypocrisy of carrying the constitution by the day. You are supporter of Right, this hypocrisy. you are supporter of Devdas Singh. What you say? What you are minister? Actually, you are unnecessarily trying to blame the Muslim. Blame game is your habit. Blame game is your bent of mind, and that every countryman knows it. Every countryman knows it. But Mr. Suleiman, I want to ask you again. Yeah. This has become a very Just one serious second. issue. Rahul Ishwar is on the reply. debate with you. Suleiman, Rahul sir, just one submission. Rahul Just give me 10 Ishwar, seconds, very yeah. well-known right-leaning political commentator from Thiruvananthapuram, is entering the debate. Yes, Rahul. Just give me 10 seconds. Yeah. No, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख, ईसाई और एक इंसान भी हूँ. इस मिट्टी का एक कण हूँ और पूरे हिंदुस्तान भी हूँ. Is one of the beautiful, shares that I've heard. Gandhiji used to tell that I'm a Hindu, Muslim, Christian, and everyone too. Here there is only one question. See, Congress, every party should be the party. Both BJP and Congress should be for Hindu, Christian, Muslim, every religion. It is good to take from All India Muslim Personal Law Board, but the natural question as a Hindu that will come to me is, when DMK or anybody abuses Hindu community, Rahul Gandhi or Congress doesn't stand up to defend that. He is not even willing to say that it is not dengue or malaria, or like Madhuvanti rightly said, when we are being abused, Congress doesn't stand up to defend it. No, but see, this particular issue, what has happened is, the way I look at it, I may be right or wrong, I'm not saying. You see, I think this was meant to be a secret list. I'll tell you what has happened, why Mr. Suleiman is so angry on the program tonight. कि बहुत बार ऐसा होता है सुलेमान जी, हम भी अभी थोड़ा से एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग और सीक्रेट पैदाइश से ज्यादा जब पैदा हुए थे उससे पहले मैं पॉलिटिकल एरेना में दाखिल हो चुका था, लेकिन I have never seen such a channel, such a anchor, such a mindset in media. This is a personal attack. देखो पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं. Don't do that, please. I am saying that you are attacking the community as a whole. I am saying that what I am saying to you is that Mr. Suleiman, the issue is that it has been reported, 1 minute sir please, it has been reported that, and I'm quoting the IANS report, okay, the globally acclaimed Sheikh Khalilur Rahman Sajjad Nomani, member of the powerful All India Muslim Personal Law Board, AIMPLB, published a list of 269 MBA candidates, plus 19, get others also on the screen, plus 19 of other parties who he and his groups will back in the November 20th elections, irrespective of their caste or religion. These comprise 170 Marathas, OBCs, 53 from SC/ST, 23 Muslims, 40 from other communities, plus 19 more from Samajwadi, All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin, CPI, CPM, PWP, and a few independents. Along with that, there is a statement of Mr. Nomani. Now, my point is easy for Mr. Suleiman and others to come and attack me. अरे भाई आपके लोग, आपके मेंबरान ये सब रिलीज दे रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि राजनीति में कोई सार्वजनिक तौर पर ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो इसका इम्पैक्ट होता है. आपको गुस्सा है, वो गुस्सा मेरे पे निकाल के आपका कुछ नहीं होने वाला है. किसी का बुरा बोल के किसी का भला नहीं होता सुलेमानी जी, और किसी को गाली दे के कोई अपना स्टेचर बढ़ाता नहीं है सुलेमानी जी. इसलिए कृपया करके विषय पे बोलिए. आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत अभद्रता से बात कर रहे हैं, ऐसे मेरे से बात ना करें. आप इन्फिल्ट्रेटर्स कहें, आप बीजेपी के हमारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं उनको इन्फिल्ट्रेटर्स ही कहे जाएंगे. इसको कोट करें, जो हर्टिंग स्टेटमेंट से हमको कोट करें, तो आप हमें इंसल्ट नहीं कर रहे. सुलेमान जी मेरी बात सुनिए 1 मिनट. मैं आसाम से हूँ, है ना, और आसाम में पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लखनऊ में आसाम में जो ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है. इसको आप रिलीजियस तौर से मत देखिए. मेजॉरिटी इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्राइब्यूनल ने पाया है कि दे आर नॉट मुस्लिम्स. मैं तो हिंदू मुस्लिम तौर से देख ही नहीं रहा. ये आपकी निगाहें इसको हिंदू मुस्लिम कर रही हैं. आपकी निगाहें विषय को हिंदू मुस्लिम कर रही है. मेरे लिए तो ये भारतीय और फॉरेनर की बात है. आप गलती कर रहे हैं. आप इस चीज को हिंदू मुस्लिम तरीके से देख रहे हैं. आप कृपया करके ये हिंदू मुस्लिम चश्मे से चीजों को ना देखें, भारतीय के तौर पर देखें. कोई भारतीय है
या कोई घुसपैठिया है, और घुसपैठियों का समर्थन इस देश में कतई कभी भी नहीं होगा। Majority of so-called infiltrators were not Muslim. They were the locals. They were Bengali-speaking Hindus. हाँ, तो those who are those that is finding of the tribunal. I am not about But you Hindu are and giving Muslim. You are obsessed permission about to Hindu the and Muslim. countrymen. I am about infiltrators. You are talking Anyway, about my that. point is, अगर आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर ने एक पर्सनल कैपेसिटी में दूसरे मेंबर्स के साथ मिलके कोई मिली भगत के साथ 269 कैंडिडेट्स का समर्थन किया है, तो उन पर कार्रवाई की जाए। Only then I'll be convinced. Am I saying anything wrong? मुफ्ती ज़ियाई जी, अगर AIMPLB पॉलिटिक्स में आ चुकी है तो आ जाए, अगर नहीं आई है तो इस मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। What do you think? What do you think, Rahul? What do you think? अर्नब, Or if you are openly in politics, you tell. Tell us. अर्नब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और पूरा देश इस बात को सुन रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरीके की बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं दिलों को तोड़ने और दिलों को झंझोड़ने वाली है। सज्जाद नोमानी साहब को ये पता ही नहीं है कि उन लोगों ने 25 और लोगों को टिकट देने के लिए और 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को जो लिस्ट बना करके दिया था तमाम एमवीए के लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि हमारे साथ जो छल हो रहा था वो लगातार वो छल हो रहा है। तो वो जनाब सज्जाद नोमानी साहब ये किस तरह कह सकते हैं कि उन लोगों को वोट दो जिन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन लोगों को वोट दो जिन लोगों ने हमारे गुंबदों को तोड़ा, उन लोगों को वोट दो जिन लोगों ने सरेआम सत्ता में रह करके हम लोगों को थ्रेट किया, उन लोगों को वोट दो। तो सज्जाद नोमानी साहब को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए थी। सज्जाद नोमानी साहब इंडिविजुअल तौर पर ज़हनी तौर पर मरीज हो चुके हैं। उन्होंने सुलेमानी जी सुनिए, और महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। You can pick and choose any person of your choice. I don't know who is he. I don't know. His name is मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, बहुत जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा सुलेमान साहब, आपको फौरी तौर पे उनको अपने उस कमेटी से और फौरी तौर पर कमेटी से बाहर करना चाहिए। वो किस तरीके से इस तरीके की बातें करते हैं। वो उन्हें चाहिए था कि वो एक पार्टी बना देते तो तमाम मुसलमानों को अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दे देते। वो एक तरफ तो एक मुसलमान को देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इम्तियाज जलील का नाम उसमें नहीं आता है। कीजिए, जो पार्टी बनाए ना बनाए, आप अपनी पार्टी बनाइए, आप बीजेपी के साथ चले जाइए। आप बीजेपी के साथ चले जाते, कौन आपको पूछ रहा है? आप शिवसेना के साथ Who is questioning you? Who is questioning your stance? You are free to join BJP, support BJP. नहीं जनाब, आप क्या शिवसेना को वोट देने की वकालत करेंगे जो खुलेआम ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने पे हमें फख्र है? सुलेमान साहब, हम किसी को वोट देने की सपोर्ट नहीं करते। तो फिर आप उनकी हिमायत कैसे कर सकते हैं मिस्टर सज्जाद? हम हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहे हैं मिस्टर, हम हिमायत और मुखालफत नहीं कर रहे हैं। एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। ऐसे लोगों को अपने कमेटी से बाहर करती है। सुनाइए। नहीं मोहतरम, ऐसे लोगों को कमेटी में रखने का क्या हक है? वो लोग Who are you to suggest? Who are you कह दिया सुलेमान जी ने मुफ्ती ज़ियाई को कहा। Who are you? जेल में हमें डाला गया हो, I don't know him. Who is he? I don't know. ऐसे लोगों को वोट देने की अपील कैसे कर सकते हैं आप? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आप लड़ते रहे कोर्ट में, और कोर्ट में हार का सामना आपको चेहरे दिखाना You may pick and choose any person, anybody of your choice. I don't know. हिमायत में खड़े होंगे। सुलेमान साहब कैसे उसकी हिमायत कर सकते हैं आप, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? क्या आप उसके वकालत करेंगे? बिल्कुल नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं करूंगा। तो फिर आप सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर में कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? ये हिंदुस्तान के सामने आप कार्रवाई की मांग करिए। पता ही नहीं है, आपको पता होगा, आपको गायब का इल्म होगा, मेरे इल्म में नहीं है। सब आपके इल्म में होगा। अच्छा, जिन्होंने आपने सुना नहीं, इसका मतलब आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रखते हैं। रेडी होगी उनकी नियत और उनके अमल के बारे में हमें नहीं मालूम। पॉलिटिक्स की निगाहों में है एक आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के तमाम सियासत को देखता और समझता है। ऐसे वक्त में जबकि हमारे मस्जिदों को तोड़ने वाले लोगों की हिमायत करने वालों की आप हिमायत कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के दिलों को मजरूह कर रहे हैं। जनाब, आप कैसे हमारा दिल तोड़ सकते हैं? कैसे हमारे दिलों, हमारे बच्चों की जो भाई
आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सब्र के साथ नहीं नहीं सुनिए। अब मोहतरम मुस्लिम मोहतरम पर्सनल बोर्ड, बेटा और भतीजा मुस्लिम बोलने से पर्सनल काम नहीं बोर्ड, चलेगा। आप मैं सुनते, समझ- आप सुनना नहीं मुस्लिम चाहते, हूँ, आप सुनना नहीं मुस्लिम से बात चाहते, करिए। आप सुनना नहीं मुस्लिम चाहते। पर्सनल बोर्ड के बारे में आप सुलेमान! और उनके सुनिए, जिम्मेदारों के बारे में भी आप बहुत अच्छे से सुनिए, जानता हूं। मेरी बात तो सुनिए। मुस्लिम पर्सनल सुनाइए। बोर्ड ने किसी भी फॉर्मुलेशन के सपोर्ट का फैसला नहीं किया है। कोई वो जनाब उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई अमल करता है तो उसके लिए वो Individual जवाबदार है। capacity He is क्या होती है? accountable for that. हैं? होती तो कैसे नहीं? इंडिविजुअल कैपेसिटी होती में कैसे आप नहीं? क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से उनको बाहर करेंगे ऐसे वक्त में? अरे भाई क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कंप्लेन है उनके खिलाफ? क्या कंप्लेन के खिलाफ? हमें तो नहीं एक्शन मालूम। कैसे नहीं लेगा? एक्शन हमें कमेटी तो है ना नहीं मुस्लिम मालूम क्या पर्सनल बोर्ड के complaint अंदर में के गलत करने वालों को रखेंगे आप? अरे भाई ये तो आपका सोच है ना। नहीं नहीं हमारी ओह, सोच नहीं है, देश की सोच है आपका ना, सोच है। हमारे लोगों की सोच है ना। मुस्लिम आपकी लोगों की सोच आप नहीं है। क़यादत करते आपकी हैं तो सोच है। मुसलमानों के दिलों को मजरूह कैसे कर सकते हैं आप? Ladies and gentlemen, I want to get